فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا
فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैद कहता
कहता बाबा, मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दाद इनका, या था तमाशा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा रात पहचाने लिया था मैंने, आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले जिसकी हक में विलादत हो जा, क्यों ना वो किबले अरबाब इरादत हो जा।
उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी, उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी, जिसके चेहरे पर नजर करना इबादत हो जाए, जिसकी ऐने सलावत सल्ले अला मोहम्मद बरज़मत शदादी ज़हरा बाज़ बुलंदतर सलावत मोहम्मद और 4 में सिर्फ फ़ज़ाइल के तौर पे पेशमित करता हूँ। जब करे अल्फाज में, जब जगमगाती है अकीदा, जब पै करे अल्फाज में, जब जगमगाती है मुझे लफ्ज़ों से अपने निगहते फिरदौस आती है, जनाबे फातिमा लाल है जन्नत के शहज़ादे, यही वो बात है जन्नत जो जन्नत बनाती है, जनाब फातिमा के लाल जन्नत के शहज़ादे, यही बात है जन्नत को जो जन्नत बनाती है आप हाथ सामने की मुश्किल परेशानी इसकी मुश्किल शायद
गुजरे के लिए आप तमाम की सेहत और सलामती के लिए जन्नत की तामीर के लिए इमाम ज़माने के मौला सज्जाद के हाल पे मैंने कथा पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मर्सी की चंद पेशमत करेंगे। एक बार मौला की अज़मत से बुलंद सलवात पढ़ कर सुना न देखा न सुना इस तरह का इस्लाम को जो सेहत कामिल बख्शे, ऐसा से आप तमाम हाजी सामिन के मरमिन बानियान के मरमिन तमाम शोदा मिल जाफे शोदा करबला के लिए बिलखुसूस फातिहा में शेर उस्ताद को याद करते तमाम उलमा कराम, तमाम मुजद्दिद कराम को, तमाम मर्शद खान, सोस खान, नौह खान, तमाम मातमियतदारों को जो इस फर्शदा की खिदमत करते थे अब हमारे दरमियान मौजूद है, उन सबको याद करते एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास पढ़ते। हज़रत रबी मर्सी के चंद मौला सज्जाद के हाल में पेशमत करता हूँ। कैसे
अरे लुटते हुए एक दिन में जहाँ देखा ऐसे, और सर सब का सरे ओके सिलाए ऐसे, अरे बाजार में मैशर का सवाए का कब से ना को कनी लई मांग रहे थे, और बहना को कनी से
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम की चंद अशआर पेश खिदमत करूँगा। अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो सरनांगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सजाद से पूछो छुपती थी नबीज़ादी नबीज़ादी के पीछे किस शर्मो हया से, अरे और शेम्र का उन बीवियों के नाम बताना, सजाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादात खड़े थे, सरतश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सजाद से पूछो जब दो जिंदान में कज़ा की आफत की घड़ी थी, वो नन्ही मैयत बंधे हाथों से उठाना, सजाद से पूछो मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ठीक फातिहा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काहिलून वला युहसी नअमअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मालूम वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल अज़म रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व कलामिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मुहम्मद। अज़ान इकराम क़द्र, आज़ादारान मज़लूम करबला, इन खमसा मजालिस के हवाले से जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया, यकीनन आप में से अक्सर के इल्म में है। इस उन्वान को इंतख़ाब करने की और चुनने की एक अहम तरीन वजह और अहम तरीन सबब ये रहा कि गुज़िश्ता कई सालों से इस बात को एहसास भी किया जा रहा था और मोमिनीन की जानिब से ये गुजारिशात भी आ रही थी कि सोसाइटी और समाज की वैल्यूज़, अक़दार, मोराल्स, अखलाक जिस तेज़ी और सुरअत से ज़वाल का शिकार हैं, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि समाजी मसाइल को, सोसाइटी के इशूज़ को अखलाकी हवाले से मिंबर की ज़ीनत बनाया जाए। और यकीनन अहम तरीन मौजू है, खुसूसन इस हवाले से कि हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद की सूरह कलम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद फरमाता है, एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर, सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मौजू अखलाकी अक़दार, ये वो उन्वान और टाइटल है कि जिसको परवरदिगार ने कुरान मजीद में अपने हबीब के लिए इस तरह इरशाद फरमाया है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा कह रहा है कि आप इस मकाम पर हैं कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक वाले नहीं हैं, अखलाक के अज़ीम तरीन और बुलंद तरीन दर्जे पर मौजूद हैं। और ख़ुद रसूल ने क्या इरशाद फरमाया आम्मा और ख़ासा की किताब के अंदर, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो रसूल के जो हज़ारों सख्तियाँ सह रहा है, कभी कूड़ा फेंका जा रहा है, कभी पत्थर मारे जा रहे हैं, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतों से रसूल को तंग किया जा रहा है, वो रसूल क्या इरशाद फरमाता हुआ नज़र आता है कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे परवरदिगार ने मबऊस इसलिए किया है, ये बेअसत से निकला है। वो जो ईद बेअसत मनाते हैं ना 27 रजब को, रसूल की बेअसत का ऐलान, तो रसूल फरमा रहे हैं कि मुझे मबऊस इसलिए किया गया है लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि मैं अखलाक के जितने मकारिम हैं उनको उनके कमाल तक पहुंचा दूं, अखलाक के कमाल तक पहुंचा दूं, लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। और ये उस दौर की बात है कि जहाँ पर अखलाकी पस्तियाँ इस मकाम पर थी कि जाहिलियत का दौर कहा गया है रिवायात में, मल्लम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलियत, जाहिलियत यानी कुरान में भी इरशाद फरमाया है जाहिलियतिल ऊला कहा है। दो जाहिलियतें हैं, एक वो जहालत थी कि जो इस्लाम के आने से पहले थी, और एक वो जहालत थी कि जो इस्लाम के आने के बाद थी, लेकिन कुरान ने उसे जाहिलियत ऊला कहा है कि जो इस्लाम के आने से पहले थी। अफसोस इस बात पर नहीं है कि जाहिलियत ऊला के अंदर लोगों ने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या सलूक किया, अफसोस इस बात पर है कि इस्लाम का पैगाम पहुंचा देने के बावजूद भी जब रसूल ने फरमाया कि इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, उसके बावजूद इस ख़ानदान के साथ जो किया गया, तो ये ख़ानदान अखलाक का बेहतरीन नमूना, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। तो रसूल की ज़िंदगी का हदफ, मकसद, बेइज्जत क्यों करार दी गई परवरदिगार की जानिब से, रसूल को क्यों मबऊस किया गया, लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि अखलाक के मकारिम को उस आला मरातब लेकर जाए कि उसके बाद ये उम्मत किसी भी मज़हब के पास चली जाए उसे अखलाक की वो तालीमात मिलती हुई नज़र नहीं आएगी जो दर आले मोहम्मद पर नज़र आएगी। दुरूद पढ़ दीजिए मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर। मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज ये जो हमारे पास प्रीचिंग्स मौजूद हैं, ये जो हमारे पास तालीमात मौजूद हैं, यानी आप अगर हमारी असासी कुतुब को उठाकर देखें जिनमें उसूल काफ़ी, कुतुब अरबा, ठीक है, उसके अलावा प्यारुल अनवार रिवायात का एक मजमुआ, वसाइल शिया रिवायात का एक मजमुआ, जामेउल अहादीस रिवायात का एक मजमुआ, इन तमाम रिवायात के मजमुओं को आप उठाकर अगर देख लें तो इन रिवायात के मजमूए में जहाँ पर अहकाम भी शामिल हैं, अकायद भी शामिल है, अखलाक की रिवायात भी शामिल हैं, इन तमाम रिवायात के अंदर 90% हमारे पास जो रिवायात है वो कहाँ से है, क़ालल बाक़िर अलैहिस्सलाम, क़ालस सादिक़ अलैहिस्सलाम, है ना, इसके अलावा कहीं और से है नहीं है। आप अक्सर औकात मेंबर से जो रिवायात सुनते हैं वो या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिसान मुबारक से सादिर हुई हैं या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की लिसान मुबारक से सादिर हुई। अच्छा, ये एक बात आपने जान ली। अब दूसरी बात, और मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल होने जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, कभी भी आप कोई बात करते हैं तो उस बात को करने के लिए एक ज़मीना चाहिए होता है, ग्राउंड वर्किंग चाहिए होती है, ठीक है ना। आप ज़मीना इस तरीके से हमवार करते हैं कि वो काम काबिल लायक और उस काम को अंजाम दिया जा सके। आप अपने घर के अंदर कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं कि जो आप देखते हैं कि भाई ये हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी रीत है,
ये उनकी कोई रस्म है, आप चाहते हैं कि ये रस्म ख़त्म हो जाए हमारे घर से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ग्राउंड वर्किंग करनी पड़ती है, आपको ज़मीना साजी करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके बाद जाकर कहीं वो माहौल फराहम हो जाता है कि बाय द पीरियड ऑफ टाइम आप ये काम कर पाते हैं कि आप अपने घर से कम कम उस रस्म को, उस एक्टिविटी को, उस रीत को, उस त्यौहार को, जो भी आप उसको नाम दें, आप उसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप निकालना चाहते हैं अपनी सोसाइटी से, तो उसके लिए आपको ज़मीनत फराहम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप कोई चीज़ इंडक्ट करना चाहते हैं, किसी से एडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी से आपने ली है वो चीज़, उसके लिए भी आपको किसी ना किसी एतबार से कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए 1400 साल पहले चलिए और हम उस सोसाइटी में जाएं कि जहाँ पर अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क्या कद्र है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या कद्र की जा रही है? यानी आप देखें बाद रसूल अल्लाह किस अंदाज में अहले बैत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहज़ादी कौनैन के जनाजे में मुख्तसर से लोग शरीक हैं। अमीरुल मोमिनीन का जनाजा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचा रहे हैं। छठे इमाम के दौर में जाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम का जनाजा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाफ़्त की जाती है। अब मुझे उस तफसील के अंदर नहीं जाना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जनाजा बड़ी शान से उठा, लेकिन वापस घर लौट कर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमने देख लिया करबला के मैदान में किस अंदाज में। मसाइब की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन मैं उन तारीख़ी वाक़यात का नक्शा खींचना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा दौर था कि जिस दौर के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन हालात के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मदीने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इन हालात के बाद ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है ज़ाहिरी एतबार से, वरना ये तो परवरदिगार के हुक्म के बगैर कोई कदम ही नहीं उठाते। लेकिन अगर आप ज़ाहिरी एतबार से एनालिसिस करें तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हिकमत है कि इस अंदाज में करबला के बाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरना क्या मौका नहीं था लोगों को पोलराइज करने का? करबला के बाद जितनी तहरीकें उठी हैं सब करबला के नाम पे उठी हैं। जितनी तहरीकें उठी हैं, चाहे सादात हसनी की हो, चाहे हम देखते हैं कि जनाब मुख्तार हो, जनाब ज़ैद हो, जितनी तहरीकें उठी वो सब के सब वाक़ई फ़ख्र, सब के सब करबला से इंस्पिरेशन के ज़रिए से तहरीकें उठती हुई नज़र आती है। तो बहुत मुनासिब मौका था। ज़ाहिरी एतबार से अगर हम देखें तो लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून पर पोलराइज्ड कर दिया जाता और इस अंदाज के अंदर तहरीक उठ जाती। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस वक्त क्या कर रहे हैं? क़ाल अल बाक़िर और क़ाल अल सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीना साजी की जा रही है। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। ये जो हमारे पास रिवायात का मजमुआ पहुंचा, जिसमें 4000, 5000, 6000 हज़ारों रिवायात हैं मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ रिवायात, ये तमाम की तमाम रिवायात कैसे पहुंची, कैसे ग्राउंड को साजगार बनाया गया कि इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ये तमाम तालीमात पहुंचा रहे हैं। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साइलेंट तबलीग थी। खामोशी के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है कि जिसकी वजह से इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इस अंदाज में हमें रिवायात पहुंचा गए। और ख़ुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं। दो अहम तरीन चीज़ें, दो बहुत अहम तरीन चीज़ें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया, और दूसरा परवरदिगार के पैगामात को दुआओं के ज़रिए से हम तक पहुँचा। ये जो करबला की टाइम लाइन की गुफ्तगू की जाती है कि करबला की टाइम लाइन क्या है, करबला की टाइम लाइन सैयद सज्जाद समझाएंगे कि क्या है। करबला की टाइम लाइन शहज़ादी ज़ैनब के खुतबों में मौजूद है कि करबला की टाइम लाइन क्या है। करबला को जहत और एंगल अगर दिया है तो जनाब सैयद सज्जाद।
दुआओं के ज़रिए से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अखलाकी अक़दार की हिफाजत करते हुए नज़र आते हैं कि जो इससे पहले हमें इस अंदाज में नज़र नहीं आई। ज़ाहिरी एतबार से वो दुआ है, ज़ाहिरी एतबार से वो परवरदिगार से राज़ो नियाज है, लेकिन इमाम उन दुआओं के अंदर वो मैसेजेस पहुंचाते हुए नज़र आते हैं हमें कि जो हमें बाद औक़ात उसूल काफ़ी और फ़ुरूए काफ़ी के अंदर भी इस अंदाज में नज़र नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर है दुआ है। तो अब दुआओं के अंदर इमाम ने उन मैसेजेस को छुपा कर रखा है, उन पैगामात को छुपा कर रखा है। यानी आप वाकई जाइएगा, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश है कि जाकर सिर्फ सहीफ़े सज्जादिया की फ़हरिस्त पढ़िएगा, वो लिस्ट पढ़िएगा। हमें और आपको जो है दुआ भी मांगना नहीं आता। अगर अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दर न हो ना तो हम दुआ भी नहीं मांग सकते। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताइए, आप हरम जाते हैं, बहुत सारे मोमिनीन नजफ़ करबला आते हैं, सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि वो हमने 5 मिनट खुदा से दुआ मांगी, 10 मिनट खुदा से दुआ मांगी, 15 मिनट खुदा से दुआ मांगी, कितनी देर मांगेगा इंसान? अब बताएं कितनी देर मांग सकते हैं आप दुआ? जो आपके जहन में जितनी हाजतें हैं, कितनी देर आप परवरदिगार से मांग सकते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। कोई बहुत ज़्यादा, ये मैं बहुत मुबालगा कर रहा हूँ, तो 1 घंटा, उसके बाद कुछ मांग सकता है। हमें पता ही नहीं है मांगना क्या है। सैयद सज्जाद उस हस्ती का नाम है कि जिसने बताया कि देखो परवरदिगार से मांगना क्या है, और सिर्फ मांगा नहीं है बल्कि दुआओं के अंदर उन मैसेजेस और उन अखलाकी अक़दार की हिफाजत कर ली कि अगर ज़माना उन अखलाकी अक़दार को अपने हाथों से सामले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और मुझे वाक़ईन अफसोस भी होता है, हसरत भी होती है, एक उम्मीद भी है कि शायद वो ज़माना दोबारा पलट कर आए। यकीनन हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो इस बात की तायीद करेंगे कि कल्चर और एक सकाफ़त हमारी समाज और सोसाइटी में मौजूद थी, और वो ये कि नमाज पंजगाना के बाद कम अज़ कम मुसल्ले इबादत पर बैठकर परवरदिगार से दुआ की जाती थी। ये था कल्चर। बल्कि मैं आपको अगर एक बात बताऊं, यकीनन जो बुज़ुर्ग हैं वो इस बात की तायीद करेंगे, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर में और बहुत सारे घरों के अंदर ये कल्चर था कि शब जुमा जो अज़ाखाना होता था घर का, उसे खोला जाता था, एक नोहा पढ़ा जाता था जिस पर वालिदैन मातम करते थे, घर के बच्चे मातम किया करते थे, और समझे वही तबर्रुक हुआ करता था, वही अज़ाबी होती थी, वहीं पर दुआ भी होती थी, वहीं पर बरकत भी होती थी। छोटी सी प्लेट के अंदर वो मिचल्स टॉफ़ी मिलती थी, वो पता नहीं 8 आने की आती थी, कितने की आती थी अब मुझे याद नहीं है, या 8 आने की 2 आती थी, 3 आती थी, वो 4-5 टॉफ़ीज़ होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, घर का हर फर्द वो टॉफ़ी खाता था। ये हमारे घरों की बरकतें थीं कि जो आज हमारे घर से उठ गई हैं। ये हमारे घरों की बरकतें थी, और आज जो हम फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं ये उन वैल्यूज़ और उन अक़दार के तोफ़ैल हैं कि जो हमारे वालिदैन ने हम तक मुंतकिल की हैं। ठीक है, ज़माना तब्दील हो जाता है, वक्त के तकाज़े तब्दील हो जाते हैं, हर दौर एक सा नहीं रहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ बरकतें ऐसी हैं कि जो हमारे घरों में आज भी वैसे ही अंदाज में बाकी रहनी चाहिए। हमारे पास रिवायात है कि शब जुमा अरवाह मोमिनीन वल मोमिनात अपने अहल के पास, अपने रिश्तेदारों के पास तशरीफ़ लाती हैं, फ़यअमलूना सालिहात, जो लोग नेक काम कर रहे होते हैं, फ़यराहुम, उनको देखती हैं कि मेरे घर वाले नेक काम अंजाम दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी कि जो हमारे बुज़ुर्गों के पास मौजूद थी कि वो मुसल्ले इबादत पर बैठते थे, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कोई दुआ पढ़ते थे, ज़ियारत आशूरा की तिलावत करते थे। ये वो चीज़ें थी जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकतें लेकर आ रही थी। आज हर बंदा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है, पूरा ही नहीं होता खर्चा। परवरदिगार ने कहा है देखो मैंने रिस्क को
सिर्फ वही नहीं रखा है जहां तुम ढूंढ रहे हो। रिस्क के कुछ असबाब ऐसे हैं कि जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं बता भी रहा हूं तुमको कहां पर है, उसके बावजूद तुम उसके पीछे नहीं जाते। 9 to 5, उसके बाद नाइट जॉब भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। अहले बैत अताहर ने बताया है कि देखो, रिस्क जो लिखा हुआ है ना, वो तुम्हें मिलकर रहेगा, वो तुम्हारा मुकद्दर है। अब उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करो, बैलेंस करो। उदऊनी फस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, फस्तजिब लकुम, तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो परवरदिगार ने कंडीशन रखी हैं, कंडीशन रखी हैं। उदऊनी फस्तजिब लकुम, अरबिक ग्रामर के एतबार से यहां पर यह है कि अगर तुम पुकारोगे फस्तजिब लकुम, तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यमहुल्लाहु मा यशाउ व यस्बुत, वहां पर जो परवरदिगार के पास लिखा हुआ है ना, वो जो परवरदिगार चाहे जो मिटा दे, जो चाहे परवरदिगार लिख दे, जो चाहे मिटा दे, जो चाहे लिख दे। यानी क्या मतलब? क्या परवरदिगार की मर्जी है? हाँ, परवरदिगार की मर्जी है, वो मालिक कुल है। लेकिन परवरदिगार ने बताया कि देखो, मैं किस बुनियादों पर हटाता हूं, किन बुनियादों पर लिख दिया करता हूं, किन बुनियादों पर हटाता हूं और किन बुनियादों पर लिख दिया करता हूं। हमारा ईमान दुआओं पर वैसा नहीं है। एक बाप अपनी बेटी के घर गया, तशरीफ ले गया, और मुलाकात की बेटी से। अब ये जवाब दे रहा हूं मैं उस एतराज़ का या उस क्वेश्चन का या उस मिसकन्फ्यूजन का कि परवरदिगार तो हमारी दुआ कबूल ही नहीं करता है, हम दुआ मांगते भी हैं, तो अब हमने छोड़ दी दुआ मांगना। तो एक बाप, हिकायत है कि एक बाप अपनी बेटी के घर गया, मुलाकात की उससे। बेटी ने कहा, परवरदिगार के दुआ कीजिए, बाबा आप परवरदिगार से दुआ कीजिए कि परवरदिगार बारिश नाजिल फरमाए। ये बारिश हो रही है ना, दुआ कीजिए कि परवरदिगार बारिश नाजिल फरमाए, इसलिए कि मेरा शौहर किसान है और हल चलाता है, उसे फसल में पानी की ज़रूरत है। तो आप दुआ करें कि परवरदिगार आसमान से बारिश नाजिल फरमाए, पानी बरसे, और इस पानी के बरसने में पे नतीजे में ये हो कि हमारी फसल खिले। जब फसल खिलेगी तो अच्छे से फसल उगेगी, जब अच्छे से उगेगी तो मेरा शौहर अच्छे से कमाएगा और हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। बाप ने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगारा तू अपनी रहमत को नाजिल फरमा। अच्छा, बाप एक बेटी के घर से फारिग होकर अपनी दूसरी बेटी के घर गया। पहली वाली बेटी का शौहर कौन था? कि जो किसान था, हल चलाता था। दूसरी बेटी के घर गया, दूसरी बेटी का शौहर था बढ़ई, मट्टी के बर्तन बनाया करता था। दूसरी बेटी के घर गया, बातचीत हुई, सलाम अलैक के बाद बाप ने कहा, कैसी हो बेटा, ठीक हो? उसके बाद बेटी कहती है कि बाबा सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खुदा से दुआ करें कि बारिश ना हो जाए कहीं। क्यों? कहा इसलिए कि मेरा शौहर बढ़ई है, उसने अभी अभी मट्टी के बर्तन बनाए हैं, अब वो खुश्क होंगे तब उसके बाद उसे बेचा जाएगा और उससे आमदनी हासिल की जाएगी, कुछ इनकम हासिल की जाएगी। लेकिन अगर बारिश हो गई तो वो सारे के सारे बर्तन ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा आप खुदा से दुआ कीजिए कि परवरदिगार अभी बारिश नाजिल न फरमाए। अब ये बाप जो वहाँ पर दुआ कर कर आया था कि परवरदिगार बारिश नाजिल फरमा, यहाँ पर ये बेटी कह रही है कि परवरदिगार बारिश नाजिल न फरमा। एक मरतबा हाथों को उठाया और कहा कि परवरदिगार मैं तो दो बेटियों के दरमियान ये फैसला नहीं कर पा रहा कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तू पूरी कायनात की दुआएं कैसे सुनता है और कैसे जवाब देता। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो बाद औक़ात इंसान अपनी ख़ास निगाहों से चीज़ों को देख रहा होता है, एक ख़ास एंगल से देख रहा होता है। दुनियावी उमूर के अंदर भी अगर इंसान थोड़ा सा बर्ड व्यू हासिल करे चीज़ों का, तो उसके लिए बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है। तो वो जो खालिक कायनात है कि जो तमाम लोगों की मसलहतों को जानता है,
जानता है कि किसका क्या फ़ायदा है और कि किसका क्या नुकसान है। इसके बावजूद कि इंसान के नुकसान में कोई चीज़ होती है परवरदिगार उसे कबूल नहीं करता, उसके बावजूद भी वो दुआ जो परवरदिगार कबूल नहीं करता है, रोज़े क़यामत जानते हैं रिवायात का मफाद क्या है? कि रोज़े क़यामत इंसान के सामने नेकियों का एक अंबार पेश किया जाएगा, उजूर का एक अंबार पेश किया जाएगा, ये भी अजर है, ये भी अजर है, ये भी अजर है। कहेगा परवरदिगार ये तो नेकियां मैंने अंजाम ही नहीं दी, ये खैर के काम तो मैंने दुनिया में अंजाम ही नहीं दिए थे। आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त आएगी, ये वो दुआएं हैं कि जो दुनिया में मांगा करता था, तेरी मसलहत में नहीं थी, तेरे नुकसान में थी, लिहाजा हमने कबूल नहीं की थी, लेकिन हमारा वादा है कि तुम पुकारो मैं जवाब दूंगा, या तो उसी दुनिया में जवाब दूंगा या रोज़े क़यामत जवाब दूंगा। ये उन दुआओं के बदले में नेकियां मिली हैं कि जो तेरी दुनिया में कबूल ना हो सकी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अंदाज़ा कर, उन दुआओं के मुकाबले में है कि जो तेरी दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। उस वक्त वो शख्स कहेगा, क्या जुमला कहेगा? ऐ काश कि दुनिया में जब इतना अजर देखेगा ना, वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई उसका इतना अजर है, तो वो कहेगा ऐ काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, ऐ काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती। तो इन दुआओं के ज़रिए से अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, खुसूसन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वो मैसेजेस और वो पैगामात इन दुआओं के अंदर छुपा कर रखे कि यकीन जानिए कि हम अगर सिर्फ उन दुआओं के ट्रांसलेशन तर्जुमे की तरफ आ जाएं तो हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। और दुआओं के तर्जुमे के एतबार से मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अक्सर मोमिनीन ये सवाल करते हैं कि मौलाना साहब ये बताइए कि आप क्या कहते हैं, दुआओं की अरबी पढ़ें या उसका ट्रांसलेशन पढ़ें? दुआओं की अरबी पढ़ें या ट्रांसलेशन पढ़ें? हमारे पास इतना टाइम और वक्त नहीं होता कि हम अरबिक भी पढ़ सकें और ट्रांसलेशन भी पढ़ सकें। तो सबसे पहली बात तो ये कि रिकमेंडेड ये है कि आप अरबिक पढ़ें और उसके साथ ट्रांसलेशन भी पढ़ें, लेकिन अम्र दायर है, इस 24/7 के अंदर इतना वक्त नहीं है कि स्क्रीन टाइम के बाद हम दुआओं पर भी कुछ टाइम लगा सकें, ठीक है? तो अब हम क्या करें, हम सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ सकते हैं या सिर्फ अरबी पढ़ सकते हैं। तो आप ये बता दें हमें, वो हमें फंसा रहे होते हैं कि आप बस ये बता दें हमें कि हम अरबिक पढ़ें या ट्रांसलेशन पढ़ें, कोई एक चीज़ पढ़ेंगे, दोनों नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ टीचर्स के दरमियान हमारी गुफ्तगू रही, हौज़ इल्मिया की बात कर रहा हूँ मैं, नजफ़ अशरफ की, तो कुछ असातिज़ा के दरमियान ये गुफ्तगू रही कि इस जैसे सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। तकरीबन तमाम असातिज़ा का इस बात पर इत्तेफाक था कि दुआ के चैप्टर में, स्पेसिफिकली दुआ की बात कर रहा हूँ मैं, कुरान की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात है। दुआ के चैप्टर में रिकमेंडेड ये चीज़ है कि आप ट्रांसलेशन को पढ़ें, इसलिए कि दुआ का माना ही ये है कि आप पुकारें परवरदिगार को। अगर आप सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, मुमकिन है आपको सवाब तो मिल जाए, मुमकिन है सवाब तो मिल जाए, लेकिन सवाब से बढ़कर जो खुदा से कुर्ब और खुदा से लो जो इंसान दुआ के अंदर लगा रहा होता है, वो सिर्फ दुआ को पढ़ के हासिल नहीं हो रही होती। लिहाजा इंसान उन ट्रांसलेशंस और उन तर्जुमों की तरफ गौर करे कि जो उन दुआओं के मफाहिम के अंदर परवरदिगार ने छुपा कर रखे। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और बातें जो मैं समेट कर लाया था वो, बहरहाल एक मरतबा मिलकर फिर बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। या अली। इन दुआओं में एक अहम तरीन दुआ जो हमारे पास सहीफ़े सज्जादिया के अंदर मौजूद है, कि जिसके अंदर एक अहम तरीन पैगाम, और वो हमारे वालिदैन से रिलेटेड, कि इंसान का रवैया अपने वालिदैन के साथ क्या होना चाहिए। देखिए बाद औक़ात क्या होता है कि इंसान दुआ तो पढ़ लेता है, उस दुआ को तर्जुमा भी कर लेता है, ट्रांसलेट भी कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम उसे आती है कि इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें।
इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे अमली नमूना बनाए। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। किताब सहीफ़े सज्जादिया के अंदर वालिदैन की जो दुआ है, उस दुआ के ज़ेल में इमाम सज्जाद क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी अहाबहुमा हैबतन, परवरदिगार तू मुझे ऐसा बना दे, अल्लाहुम्मा जअलनी अहाबहुमा हैबतस सुल्तान, तू मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने वालिदैन से ऐसे डरूं कि जैसे मैं बादशाह और सल्तनत और हुक्मरानों से डरता हूँ। कोई खौफ ज़दा, यानी कितना खौफ दिलाया जा रहा है कि ऐसा बना दे कि मैं इतना डरूं अपने वालिदैन से। और अगला जुमला क्या है, अगला जुमला यह है कि वह अबर्रहुमा बिर्रल उम्मिर रऊफ, और परवरदिगार तू मुझे ऐसा बना दे कि उनके हाल पर ऐसे शफीक और मेहरबान हो जाऊं जैसे कि एक माँ शफीक और मेहरबान होती है। ये दो ओपोजिट सिफात हैं, बिल्कुल मुतज़ाद सिफात हैं कि जो दुआ की जा रही है। एक मरतबा ये दुआ की जा रही है कि मैं ऐसे डरने लगूं जैसे किसी बादशाह से डरता हूं, और फिर कहा जा रहा है कि मैं इतना रहमदिल हो जाऊं कि जैसे माँ अपने बेटे पर होती। ये दोनों सिफात कैसे जमा हो सकती है? एक बच्चे के अंदर अपने वालिदैन की निस्बत से ये दोनों सिफात कैसे जमा हो सकती है कि इतना खौफ भी है और इतना रहम भी है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स चलना पड़ेगा। और वो कैसे कि जब ये बच्चा था तो ये अपने वालिदैन से खौफ भी ऐसे खाता था कि जैसे कोई बादशाह है, और इसी बच्चे के दिल में माँ की निस्बत से इतनी शफ़क़त और मोहब्बत हुआ करती थी कि उसे ये पता होता था बच्चे को कि अगर मैं किसी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार हुआ तो मुझे बचाने वाला कोई है तो मेरे वालिदैन हैं। मुतज़ाद सिफ़ात हैं, मुतज़ाद सिफ़ात हैं, लेकिन अपने वालिदैन की निस्बत से इन मुतज़ाद सिफ़ात को जमा करो। और फिर आगे जाकर क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा वमा मस्सहुमा मिन्नी मिन अज़न औ खलस इलैहिमा अन्नी मिन मखरूहिन औ ज़ाअ क़िबली लहुमा मिन हक़्क़िन फ़जअलहु हिद्दतन लिज़ुनूबिहिमा। क्या फरमाया, ए अल्लाह इन्हें मेरी तरफ से अगर कोई भी तकलीफ़ पहुँची है, वालिदैन को, ज़ाहिर है इंसान ज़िंदगी गुजारता है, कभी ऊपर नीचे सब कुछ, कभी आवाज़ बुलंद हो जाती है, कभी इंसान बदतमीज़ी कर लेता है, अगर मेरी जानिब से कोई तकलीफ़ पहुँची है इन्हें, या कोई नागवार सूरत हाल पेश आई, या मैंने इनका कोई हक़ तलफ़ कर दिया अपने वालिदैन का, तो क्या कर, तू उसे गुनाहों का, उनके गुनाहों का, फ़जअलहु हिद्दतन लिज़ुनूबिहिम, तू उन्हें उनके गुनाहों का कफ़ारा करार दे दे। मेरी गलतियाँ जो मैंने अपने वालिदैन की निस्बत से की हैं, इन गलतियों के बदले में दुआ क्या मांगी जा रही है कि ये गलतियाँ मेरे वालिदैन के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। यानी इंसान अपनी अगर गलतियाँ कर रहा है तो उसके मुकाबले में भी क्या चीज़ मांग रहे हैं परवरदिगार से, उनके गुनाहों का कफ़ारा। और अब बात मज़ीद तवील हो जाएगी, मैं इंशाअल्लाह चंद 2-3 फ़क़रात इससे मुताल्लिक़ और अर्ज़ करना चाहता था, और उसके बाद कुछ गुफ्तगू है जो अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुरूद पढ़ दीजिए इमाम के साथ, उनके अखलाक से मुताल्लिक़ कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन के साथ भी किस अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। और उससे रिलेटेड सोशल मीडिया जो इस वक्त एक जिसे कहा जाए सबसे ख़तरनाक बीमारी, ख़तरनाक मरज़ जो हमारी सोसाइटी को लाहक हो चुका है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से शर को जिस अंदाज़ में फैलाया जा रहा है, उस हवाले से जुमे के खुतबे में आग़ाए सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ने, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद,
आगा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ने कुछ सालों पहले अपने जुमे के खुतबे में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किस अंदाज में किया जाए, वो कौन से एटिकेट्स हैं और वो कौन से टिप्स हैं कि जिनका ख्याल रखे और इंसान अपने सोशल मीडिया के यूज़ को दूसरों के लिए मुफीद बनाए, सोसाइटी के लिए मुफीद बनाए, प्रोडक्टिव बनाए, पॉजिटिविटी बनाए, न ये कि वो इस सोशल मीडिया को नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करें। अगरचे ये गुफ्तगू आज होनी थी, अलबत्ता वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इन मारूज़ात को इंशाअल्लाह कल की मजलिस में बयान किया जाएगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या है अखलाक इमाम का? अखलाक ये है इमाम का कि जब कोई शख्स आकर पूछता है कि आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, तो इमाम फरमाते हैं ये बता तूने कुरान की, हाफिज़ कुरान था वो शख्स, इमाम ने कहा ये बता तूने कुरान की ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा? कहने लगा कि हाँ पढ़ी है। इमाम ने फरमाया ये बता तूने कुरान की ये आयत पढ़ी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु? कहा कि हाँ पढ़ी है। कहा कि ये बता ये पढ़िए ये पढ़िए। इमाम आयतों की तिलावत करते गए। फिर इमाम ने कहा जानता है कि इन आयतों में जिनकी फजीलत बयान की जा रही है वो कौन है? कहा कि वो हम हैं अहले बैत अत्हार, कि जिनकी ये फजीलत बयान की जा रही है। और ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गिरिया करते हैं तो कोई आकर सवाल करता है कि मौला आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, आपके इस कदर गिरिए का सबब क्या है? इमाम जवाब के तौर पर क्या फरमाते हैं कि याकूब का एक बेटा यूसुफ निगाहों से ओझल हो गया था, मेरे 18 यूसुफ मेरी निगाहों के सामने शहीद कर दिए गए। वो रिवायत जो आपने इब्न शबीब की पहली मुहर्रम को सुनी थी, उस रिवायत के अंदर भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मा लहुम शबीहुन फिल अर्ज़, रुए ज़मीन पर जिनका कोई शबी ही नहीं था उन्हें शहीद कर दिया गया। कोशिश रहेगी कि इन 5 दिनों के अंदर बनी हाशिम के 5 अफराद की मुसीबत आपके सामने बयान की जाए। और आज जिस हस्ती की मुसीबत अब बयान करनी है वो है सानी ज़हरा उम्मुल मसाइब के 2 फर्जंदान की मुसीबत। अजरुकुम अलल्लाह। अपने दिलों को करबला में लेकर चलिए, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के जुमले पेश करते हैं और उसके बाद मैं मुसीबत के चंद फ़क़रात आपके सामने पढ़ूँगा। आका, हमारे जिस्म यहाँ पर मौजूद है लेकिन हमारे दिल करबला में मौजूद हैं। वो दिन कब आएगा, वो मौका कब आएगा, वो रात कब आएगी कि हम आपकी ज़रीह को पकड़ कर इन अल्फाज को अपनी ज़बान से अदा कर सकेंगे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि इसी साल वो मौका नसीब हो कि हम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन की जाली पकड़ कर ये ज़ियारत के जुमले पढ़ सकें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलकर पढ़िए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन
वअला औलादे हुसैन वअला सहाबेल हुसैन। जानते हैं कि शब आशूर बनी हाशिम की हर माँ अपने लाल को तैयार कर रही थी। देखो, कल बाबा पर मुश्किल का वक्त है, अपनी जान को अजीज़ न करना। कल मामू जान पर मुश्किल का वक्त है, अपनी जान को अजीज़ न करना। कासिम की माँ कासिम को तैयार कर रही थी, अकबर की माँ अकबर को तैयार कर रही थी, असगर की माँ असगर को तैयार कर रही थी। और शब आशूर ये कहती थी कि परवरदिगार, मेरे पास हुसैन के लिए कोई कुर्बानी नहीं है। और जानते हैं कि एक माँ थी कि जो मदीने से चली थी, तो उस मौके पर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कहा था कि देखो, जब हुसैन पर मुश्किल का वक्त आए तो ये दो अमानतें लेकर जा रही हो ना, एक अपनी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कर देना, एक मेरी जानिब से कुर्बान कर। अजरुकुम अलल्लाह उम्मुल मसाइब को पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। ये वो बीबी है कि जिसने एक मर्तबा बच्चे सवार भी नहीं हो सकते। मुझे नहीं मालूम कि ज़ैनब ने किस दिल के साथ इन बच्चों को रुखसत किया। एक मर्तबा हुसैन ने इन्हें सवार कराया और रन की जानिब भेजा। मख्तल को जो बच्चे गए, कितने कमसिन बच्चे थे कि घोड़े पर सवार भी खुद नहीं हो सकते थे। मामू ने सवार किया है, उसके बाद रन की जानिब चले हैं। घुमसान की जंग हुई, हज़ारों को वासिल जहन्नम किया, लेकिन आखिर कब तक लड़ते। एक मर्तबा ज़ीने फ़रस से ज़मीन करबला पर आए और सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा, मामू जान हमारा सलाम कबूल कीजिए। एक मर्तबा हुसैन बच्चों की लाश पर पहुंचते हैं। अब मकातिल ने ज़्यादा तफसील बयान नहीं की कि कैसे हुसैन और मोहम्मद को ज़ैनब के सामने लेकर आए, लेकिन कुछ बातें ऐसी लिखी है कि हुसैन पर ज़ैनब ने अपने बच्चों को सदका कर दिया था ना, लिहाजा ज़ैनब अपने बच्चों को कभी न रोई। करबला से कूफा, कूफा से शाम, एक मौका वो आया कि जिस मौके पर हर शहीद नोके नेज़ा से अपना सर, हर शहीद का सर जो नोके नेज़ा पर बुलंद था, कोई ना कोई बीबी आती थी, अपने शहीद का सर लेकर चली जाती थी। दो सर ऐसे थे जो नोके नेज़ा पर बुलंद थे। किसी खातून ने कहा, लगता है कि इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है। एक मर्तबा सर को पीट लिया, कहा कि इन बच्चों की माँ ज़ैनब है, लेकिन जो आले मोहम्मद पर सदका हो जाए उस पर फिर गिरिया नहीं किया जाता। अजरुकुम अलल्लाह। एक मर्तबा ज़ैनब अपने बच्चों को न रोई। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला गई। अब जो करबला से मदीना पहुंची, अरे एक मर्तबा अब्दुल्ला के घर में दाखिल हुई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, दो छोटे छोटे मुसल्ले देखे। आनो मोहम्मद के हुजरे में दाखिल हुई, सर को पीट लिया। आनो मोहम्मद, माँ तुम पर कुर्बान। हुसैन पर गिरिया किया, अकबर पर गिरिया किया, अब्बास पर गिरिया किया, कासिम पर गिरिया किया। माँ तुम पर न रोई, लेकिन हाय आलो मोहम्मद, अरे माँ तुम पर कुर्बान। अला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुनिया में जहाँ कहीं भी शियान अहले बैत आबाद है, उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। जिन मोमिनीन पर दुनिया
दुनिया में जुल्म सितम हो रहा है। परवरदिगार ज़ालिमीन अगर हिदायत के लायक है तो उनकी हिदायत के असबाब मुहैया फरमा, अगर हिदायत के लायक नहीं है तो उन्हें नीस्त नाबूद कर दे। तमाम मज़ालिम का इंतकाम लेने के लिए ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। ज़ैनब को मक्का फरमान परदेस में रुलाए, ज़ैनब को मक्का फरमान परदेस में रुलाए, ज़ैनब को मक्का फरमान में
परदेस में रुलाए, ज़ैनब को माँ का फरमा परदेस में रुलाए। पुरसे की इस जहां में हर रास में है बताती, मरता है जब भी कोई दुनिया हसन है जाती, लेकिन गरीब सारा खुद पर सड़ने आए, ज़ैनब माँ का फरमा परदेस में रुलाए, ज़ैनब माँ का फरमा परदेस में रुलाए, ज़ैनब माँ का फरमा परदेस में रुलाए। रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रेदाए छीनोना, रेदाए छीनोना तेरे घराने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। सवाल आग पे सोने पे उसके रोने पे, सवाल आग पे सोने पे उसके रोने पे, वो मार के वो मार के सकीना को हर बहाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, जगाया जाता था, जगाया जाता था बिते को तालियाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। बुलाए के सराबाद से को मदद के लिए, बुलाए के सराबाद से को मदद के लिए, वो बेदागी, वो बेदागी की जगती रही बुलाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। कायकात शहीदा में बाप के सर
वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु